हेलो दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा आप सभी का ई बुक एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का ये टॉपिक देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि जो दूसरे देश में लीडर्स हैं वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो क्या पॉलिसीज़ अपना रहे हैं और भारत में क्या हो रहा है, ये खुद आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ 2 मिनट का एक छोटा सा क्लिप है, आप ये ज़रूर देखें। More important point, I think, Mr. President, is we need high-skilled workers in this country. Yes. We need to recruit the best and brightest from the world. Every I time we agree. get somebody super intelligent from India or Europe, any country, that's Three of us one are less- immigrants, sir. Yeah, and 3 of the 4 here are immigrants, the ones without the ties. And we can get these great people into our country, and that's a loss for our adversaries and our competitors, and it's a gain for us. But I've never heard you talk about this. Can you please promise us you will give us more ability to import the best and brightest around the world to America? I do promise, but I happen to agree. That's why I promise. Otherwise, I wouldn't promise. Let me just tell you that it's so sad when we lose people from Harvard, MIT, from the greatest schools, and lesser schools that are phenomenal schools also. And what I wanted to do, and I would have done this, but then we had to solve the COVID problem because that came in and, sort of dominated for a little while, as you perhaps know. But what I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card to be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. If you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. And you know more stories than I do, but I know of stories where people graduated from a top college or from a college and they desperately wanted to stay here. They had a plan for a company, a concept, and they can't. They go back to India, they go back to China, they do the same basic company in those places, and they become multi-billionaires employing thousands and thousands of people, and it could have been done here. And a bigger example is you need a pool of people to work for your companies. You have great companies, and they have to be smart people. Not everybody can be less than smart. You need brilliant people. And we force the brilliant people, the people that graduate from college, the people that are number one in their class from the best colleges, you have to be able to recruit these people and keep the people. It was such a big deal. Somebody graduates at the top of the class, they can't even make a deal with the company because they don't think they're going to be able to stay in the country. That is going to end on day one. तो अभी आपने ये वीडियो देखा, यहाँ पे ट्रम्प क्या बोल रहे हैं। आपको पता होगा ट्रम्प एक ऐसे लीडर हैं, हमेशा से वो बोलते थे कि माइग्रेशन जो होगा, इमिग्रेशन जो होगा, उसको हम रोकेंगे। दूसरे देश के जो लोग इलीगली यूएसए में आ रहे हैं उसको हम रोकेंगे, आने नहीं देंगे। पहले से ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्या बात करें डोनाल्ड ट्रम्प, एक पॉडकास्ट के दौरान इन्होंने बोला कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हाँ आपने सही सुना, चाइना का भी नाम लिया था पर मैं इंडिया पे फोकस कर रहा हूँ, कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो भारत से हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, मतलब यूएसए में जो भी इंडियन स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट माइंडेड होते हैं। वो एमआईटी में पढ़ते हैं, हार्वर्ड में पढ़ते हैं, और उसके बाद पढ़ने के बाद वो वापस अपने देश चले जाते हैं, मतलब भारत चले जाते हैं, और वहाँ जाके वो मिलियंस पैसे बनाते हैं, कमाते हैं, रोज़गार देते हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट वहाँ यूएसए में पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, ब्रिलियंट माइंडेड, वो अब वापस यूएसए में रहें। इसके लिए उन्होंने क्या प्रपोजल दिया है कि हम जब कॉलेज फिनिश होगा स्टूडेंट्स का तो हम लोग उनको ग्रीन कार्ड दे देंगे और फिर हम लोग उन्हें फोर्स करेंगे कि आप यूएसए में ही रहें, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, आप यहाँ शानदार जॉब करें, अपॉर्चुनिटी देखें। अब आप कंपेयर करें कि वहाँ के जो लीडर्स हैं कितने ज़्यादा विजनरी है। वो देख रहे हैं कि उनके देश में कैसे जॉब आएगी, कैसे तरक्की होगी, कैसे पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्रिलियंट माइंड पीपल है, आप देख लो, सत्या नडेला हो गया, सुंदर पिचई हो गया, और ना जाने कितने सीईओज जो इंडिया से हैं, जो पढ़े हैं वहाँ पे और वहीं यूएसए में ही नौकरियाँ पैदा कर रहे हैं और नौकरियाँ दे रहे हैं लोगों को। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम लोग यूएसए में ही रखेंगे। पूरे दुनिया में कहीं भी लोग हैं, अगर यूएसए में जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो हम ऐसे टैलेंट को रिटेन करेंगे, हम वापस जाने उन्हें नहीं देंगे। ये होता है यूएसए के लीडर का विजन। आप देखो, दूसरी तरफ आप भारत में देखो, हम छोटे मोटे मुद्दों में ही फंसे रहते हैं। कभी फ्री का बिजली, फ्री का पानी, ये सब बोल के लीडर्स हमसे ऐसे बात करते हैं और हम लोग जो है इसी में उलझे रहते हैं।
तो ये जो टॉपिक है अभी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे सर्कुलेट किया जा रहा है, और ये पॉडकास्ट भी क्यों, क्योंकि आपको बता दें चाइना के बाद भारत से ऑलमोस्ट 2,89,526 तो चाइना का स्टूडेंट है, वहीं पे इंडिया का 2,68,923 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मतलब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स भारत से जाते हैं यूएसए पढ़ने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि जब ये सरकार में आएंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट, खास करके जो स्टेम ब्रांच से, स्टेम क्या हो गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, इस फील्ड से हैं जिनको सबको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। तो देखेंगे ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे जल्दी इस तरह की बातें करते नहीं हैं। तो ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आने वाले चुनाव में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आप देखेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह चाइना टॉप पे तो है, लेकिन चाइना लगातार अब स्टूडेंट्स को अपने बाहर कम भेज रहा है, कम होता जा रहा है, वहीं भारत जो है वो कंटिन्यू भेजता जा रहा है और भारत के लोग जाते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का भी विषय है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे और फिर किसी और देश में कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारे देश में उनका योगदान बहुत ही कम रहेगा। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्या हम वैसे फैसिलिटीज़ भारत में नहीं प्रोवाइड कर सकते कि जो ब्रिलियंट माइंड है, बहुत बार आप डिबेट सुनेंगे कि क्या सुंदर पिचई, सत्या नडेला जो भी हैं वो लोग बाहर काम कर रहे हैं, अगर भारत में रहते तो अभी कुछ और कर रहे होते। तो ये भी सवाल है कि क्या उनको इतना यहाँ पे सुविधा मिलता कि वो कुछ कर पाते, ये भी एक सोचने का विषय है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ये क्यों वीडियो जो है लगातार पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।